Erta siz xo'jayinsiz, oyimdan keyin ishchimasiz, men telefon qilmayapsiz. Avvallar rashk qilardingiz-ku, chiqmay. Yo, siz nimaga o'zgarib qolyapsiz, tushunmayapman. Ku. Xo'p, nima xohlayapsan mendan? Qanaqa hisob-kitob qilyapsiz? Ishdaman deyapman, hisob-kitob qilyapman. Telefonlar qo'yib qo'yasiz. Qilmaysan qilib. Hozir umuman o'zgargansiz. Mana. Qaynijoning qaymog'ingmidi, o'shlayman. Qanday ketgan bo'lsang, o'shanday o'zing qaytib kelgan. Olib ketishingizni xohlayapman. Yo, men bolaylik, nima xohlayapsan hozir? Kelib bizani olib Sen o'zi nega boshimni qotirasan? Ishdaman deyapman. ketadigan. Unda taksida kel, nima xohlayapsan? Qiladigan ishi yo'q de Shahzodda, to'g'rimi? Men olib borib O'shanga aytsang olib keladi. qilib muomalam yo'qardi-ku. Shu muomalam uchun. Sizga mash muomalangni to'g'rilagan. Men seni eringman, o'rtog'ing emas. baqirmang menga. Sen baqiryapsan. To'chni urishamiz. Men bu qilig'ingizni hozir Oyjonga Iltimos, boshimni qotirmagin. to'chni urishib qolamiz. Layli, hozir urushib qolamiz. Shu yaxshi ko'rdingiz-ku? Voy. Qotil Oyjon. Ha, tinchlikmi? Nega? Nima? O'g'lingiz o'zgarib Ha, qolyapti. nima bo'lyapti? Tinchlikmi, ha? Katta xolangga kerak bo'lsa. Et beraman, oyimga et beraman. Gap eshitib olasiz. Bir og'iz telefon qilganlari yo'q. 3 kundan beri uydan chiqdim. Keldim, shetdaman. Sekinroq gapiring-da, voy. Voy. Nima menga to'g'rilayapsan, nima to'ningni ko'taryapsan deyaptilar. Telefonni yuzimga qo'yib qo'yaptilar. Ha, endi hadeb telefon. To'g'ri gapirgin. Qimmat telefon, ishdaman. Nima? Yo, Oyjon, gap unda emas, ishdaman. Oyjon. Ha, o'g'lim rashk qilyapsizmi? Shunday deysizmi? Oyjon, o'g'lingizdek baribir. Meni onam bo'lganda meni yonimda Yotibsiz eringizga. Siz adashtiryapsizki-na? Voy. 3 kun siz qilmadingiz deb telefon qilib o'rganingizdan keyin qaysi erkak kishiga yoqadi? 3 kun qilmadim. Siylashgan. Ha, shu sizdan kuyov payg'ambarlar maqtagan. Hamda onangiz ham meni o'g'limni yonini olib. Yonim olardilar. Voy, hech jamdi. Og'zini yop, sen tilim ham yoqqa chiqib ketadi-ya. Bo'pti-ya bu kelina. Tavba-ey. To'xtamaysiz ha? Voy, mendan ham o'tib ketchi, dovdirab qolaman sizni gapingizdan. To'xtamaysiz, to'xta. Kelinim. Hay Laylaxon, menga qarang. Yetishmas ekan, ha? Ha, o'zimmi kelinim, baribir yoqadi. O'zi qaynona kelinni tuprog'ini bir joydan olganda bekorga yetishman. Borasizmi siz ham? Men ham borardim. Men kasalxonaga ketyapman. Hop. Zamira, Telefonimi? Ber. Hozir men bir og'iz ishxonaga telefon qildim. bo'ling bo'lmasam. Men o'rnimga obedgacha. Allo. Malika. Tinchlikmi? Ishim bor edi, ikkilarga. Ha, Zamira sizmisiz? Men Zamirami? Eplab tura olasizmi? Tanimadim. Xo'p, bo'pti. Nega? Ha, O'zingiz so'rang. Xo'jayini o'zlariga telefon qiling, Ravshan. yergacha boraman. Bilmasam, Ketmasdan o'rganib qopman. Telefonimni qarang, qolib ketayotganini. Telefon ishlatma. Voy, Hozir opa. Voy, bu odam nega ko'tarmaydi? bo'lsa, birato'la ovalaman. Men ham kenayimga bir og'iz qilaychi, u bir narsa kerak bo'lsa, oldingizga ketyotgandim. O'shanga nimadir kerak bo'lsa, SMS yozib qo'ya qolaman. anaqa. Ha, rahmat. Yaxshimisiz o'zingiz? Kenaya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum opa. Qayoqqa ketyapsiz? Xola, menga ruxsat Voy, berib javob berishdimi? Ha, kerak emas. Haligi men chiqib ketyapman. Ovalaymi degandim. Yo'q, hech nima. Bo'pti, xo'p. Menga Bo'pti, bo'lmasa, shunaqa qilamiz. Ko'rishamiz. Shu yerga kela qoling opa. Yaxshi ham telefon qilmana. Xolamnikiga xolam olib ketyapti. Yaxshi. Begona. Tushunmaysanmi shu narsani? Yaxshi gumon qilib ko'r. Xolingni o'g'li bo'lsa ham deb so'rashyapti. Seni o'ylayotgan narsam. Rasm jo'natib, "Men bu eriymi? Boshqa xotini bormi?" Nima bo'lgan taqdirda ham bolangni otasiman, tushundingmi? Bolalarga o'rganib qo'ygan. Chaqirib qo'ymayapti. borib sochini bittalab yular. Daryo meni bolamni ko'tarib yurmaganida. O'sha qiz senga Men.
o'sha qiz senga bosh अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो आमना होती है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है और वो लड़ रही होती है कि क्योंकि उसका शौहर का अफेयर किसी और से चल रहा होता है और उसे रोकती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और आमना नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे रोकने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उसका शौहर कहता है तुम अभी की जाती आज की जाती अभी जाओ, मुझे क्या, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। और उसका शौहर कहता है मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा होता है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे घर से निकल जा। और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं अपनी माँ बाप को बताऊँगी, अपने भाई को बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी ख़ानदान और तुम्हारे किसी भी भाई बाप और माँ का किसी का भी डर नहीं है, तुम जहाँ भी जाओ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो चली जाती है, अपनी माँ के घर आती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, हम उस पर पर्चा करेंगे और उस पर और वो उसकी माँ कहती कि तुम परेशान मत हो बेटा, हमको सोचते हैं उसे समझाएंगे, ना समझ आई तो उस पर हम पर्चा करेंगे। और उसका भाई कहता है मैं अभी जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ। उसकी बहन कहती है अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, आप प्लीज़ कल जाना या 2 दिन बाद जाना। और उसका भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। और कुछ दिन बाद वो जाता है, अपनी बहनोई से बात करता है कि ये तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम होते कौन है ऐसा कहने वाले, मैं जो कुछ मर्ज़ी करो। और वो कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। और वो उसे जाता है पर्चा करा देता है और वो कहता है कि इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और उसकी माँ कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, सुलह पर बात ख़त्म हो जाएगी, हम सुलह कर लेते हैं। और वो कहती है कि मुझे सुलह नहीं करनी, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे बेवफाई की है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगी और इसे कभी भी इसके साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ समझाती कि बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान गलतियाँ कर लेता है लेकिन गलती की तो माफ़ी भी होती है। और उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे सुलह कर लो। और उसका शौहर कहता है कि मैं इसे सुलह नहीं करूँगा, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इससे ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता। और यहीं पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और उसका बाप भी। और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल उसे ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशानी ली है और जिसकी वजह से इसे अटैक आया, इसका मज़ीद ख्याल रखें क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से जान तो हो सकती है। इसी वजह से वो कहती है कि इसे ले जाओ घर और इसका मज़ीद ख्याल रखो। और वो ये सब बातें ख़त्म कर देती है। जो आमना होती है वो उसके बारे में सोचना और सब कुछ ख़त्म कर देती है और अपने बारे में सोचती है, एक नई जॉब ढूंढती है और जॉब करती है और अपने माँ बाप को कहती है मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। और एक दफ़्तर में जाती है, उधर अपनी इंटरव्यू के लिए काफ़ी जगह पर जाती है और सब रिजेक्ट कर देते हैं। और एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो जाते इंटरव्यू करती है और उसे पसंद आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कल से काम पर आ जाना। और वो बहुत खुश होती है, अपनी माँ के घर आती है और कहती माँ अब तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं अब उसे खुला ही लूँगी, अब उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी क्योंकि अब मुझे काम मिल गया है और मैं काम करूँगी और सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी। और उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा। और वो सुबह काम पर जाती है क्योंकि वो जो सा उसका बॉस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर नज़र रखता है क्योंकि आमना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है। उससे बातचीत करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बातें भी करता है और उसके साथ ना अटैच होने की कोशिश करता है। आमना हर रोज़ जाती है और हर रोज़ आ जाती है क्योंकि एक दिन उसका बॉस उसे खुद कहता है कि आमना आज मैं तुम्हें खुद का छोड़ कर आऊँगा। और वो कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ सर नहीं जा सकती, सब शक करेंगे कि आमना इसके साथ ये आप समझ रहे हैं ना बॉस कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और वो कहती है कि उसका बॉस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी सही। और वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद
खुद से चली जाऊंगी। और अगले दिन फिर उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने की कोशिश करता है, और उसकी आमना कहती है चलो ठीक है आज तुम मुझे छोड़ दो। और उसका बॉस उसे गाड़ी में बिठाता और कहते हैं कि आमना आज हम कुछ कॉफ़ी पिए चलें। और आमना कहती आज नहीं बॉस, फिर कभी, आज मुझे जल्दी घर जाना है। वो कहता है ओके ठीक है, उसे घर छोड़ता है और वापस आ जाते हैं। और आमना जब घर आती है तो काफ़ी सोचती है कि आज बॉस को क्या हो गया, वो मेरी बात में ऐसे क्यों, मुझे छोड़ने क्यों आया। किसी को पता चल गया तो वो तो गलत ही समझेंगे। और अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, शायद वो तुम्हें पसंद करता हो, तुमसे शादी करना चाहता हो तो अच्छी बात है ना, तुम उसके साथ अटैच हो जाओ, वो जैसा कहे वैसा करो। और वो उसकी माँ कहती कि ठीक है बेटा, तुम हाथ मुँह धोकर खाना खा लो फिर बातें करते हैं। कहती है ठीक है माँ, तुमने दवाई खाई है तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसका बाप भी आता है, उसका भाई भी आता है, और वो कहता है कि आमना आज सुनाओ तुम आज जल्दी घर आ गई। और कहती है नहीं, आज जल्दी काम बस ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। वो कहती ठीक है। और वो खाना खाती है और उधर से उसके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि आमना भी इंटरेस्ट कर रही थी अपने बॉस में, इंटरेस्ट हो रही थी। तो उसके शौहर का फ़ोन आता है, क्योंकि वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसे धोखा देकर भाग गई होती है और वो अकेला रह जाता है। और उसका शौहर आमना को फ़ोन करता है कि आमना आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। और आमना उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें तो इज़्ज़त का पता ही नहीं, तुमने इस तरह से मेरी इज़्ज़त उछाली है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और ये ज़िंदगी भर मैं भूल नहीं सकती। इसी वजह से मेरी ज़िंदगी से और मेरी प्राइवेसी से दूर रहो और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो उसका शौहर काफ़ी ज़्यादा उससे मिन्नतें करता है, तरले करता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश भी करता है। और वो आमना जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है। आमना आगे से कहती है कि ये इंसान ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब मुझे खुला लेना ही होगा। और वो अपने बाप के पास जाती है, अपने भाई के पास, अपनी माँ के पास उसे बुलाती है और कहती है कि और आमना कहती है कि आप सब मेरी बात गौर से सुन लें कि मैं उस शख्स से ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मेरी ज़िंदगी से उसे दफ़ा करो, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ले चुकी, अब मैं नहीं लेना चाहती। और उसका बाप कहता है कि हम सोचते हैं। और आमना इतनी बात कहकर ऑफिस आ जाती है और उसका बॉस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे उसके आने की खुशी होती है तो उसे वो गिफ्ट करता है, उसे गिफ्ट देता है। तो आमना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पहले तो परेशान कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर वो उसका बॉस कहता है कहीं डिनर करने चलें, उस दिन भी तुमने कॉफ़ी नहीं पी मेरे साथ, आज ही चलो। और वो कहती ठीक है। और जो उसका शौहर होता है वो उसके घर आ जाता है, उसके माँ बाप के सामने उससे माफ़ी मांगता है, सब कुछ करता है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि हम कुछ नहीं अब कर सकते, आमना का जो फैसला होगा हमें भी वही मंजूर होगा। वो कहते हैं ठीक है। आमना जो थी वो अपने बॉस के साथ डिनर पर जाती है, लंच भी करती है और डिनर पर भी जाती है। घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि आमना क्या बता आज बहुत खुश हो। वो कहती है कि किसी फ्रेंड ने मुझे डिनर पर बुलाया था, इसी वजह से आज मैं डिनर पर जा रही हूँ, तो माम आज मैं लेट आऊँगी। वो कहती ठीक है बेटा। और वो रात के 8 बजे उसे डिनर के लिए जाती है, तो उसका बॉस उसे वहाँ पर प्रपोज़ करता है और वो कहता है कि आमना तुम जब पहली बार आई थी तो मेरे दिल में भाग गई थी, इसी वजह से मैं तुमसे आर यू मैरी मी। और वो कहती है कि मैं सोच कर बताऊँगी। और उसका बॉस उसे रिंग गिफ्ट करता है और आमना ले लेती है और कहती है कि मैं अपने बाप और भाई से बात करूँगी और फिर सोच कर बताऊँगी। जब वो घर आती है तो सुबह होती है तो उसका जो भाई और बाप होता है उसकी माँ उसे बुलाती है और कहते हैं कि और उसका बाप कहता है कि आमना मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा शौहर आया था और वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था और हमसे माफ़ी मांग के गया है, तो तुम्हारा इसमें क्या फ़ैसला। और वो कहती है कि मैं इस शख्स घटिया शख्स से कह चुकी हूँ कि मुझे इसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाना, मैं काफ़ी ज़्यादा सताई हुई हूँ, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। और उसका बाप कहता है जैसा तुम्हारा फ़ैसला वैसा ही होगा। और वो अपने बॉस के बारे में सब कुछ बताती है और वो कहती है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। और उसका बाप कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वो उसे घर बुलाते हैं तो लड़का काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आता है और वो कहते हैं कि ये रिश्ता हमें मंजूर है। और आमना बताती है कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, तो उसका बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारी पहली शादी से कुछ नहीं लेना। और उसकी शादी हो जाती है
اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور یہیں پر